Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching Center. Dear students, today we are going to study math, class 8, linear equation, 10 mind blowing questions. ये जो पाठ हमारा बन रहा है आज, ये 10 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. If 2 is added, both numerator and denominator, 2 is added with both numerator and denominator, the fraction will be 9 by 11. And if 3 is added both numerator and denominator, it will 5 by 6. Find the fraction. तो हमको फ्रैक्शन निकालना है. सॉल्यूशन. लेट फ्रैक्शन इज x by y. If first equation for you, if 2 is added both numerator and denominator, x plus 2, y plus 2, it will 9 by 11. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा. 11x plus 22 equal to 9y plus 18. Now it will 11x minus 9y equal to 18 minus 22. Now it will 11x minus 9y equal to minus 4. ये बन गया इक्वेशन 1. Again if 3 is added both numerator and denominator, 3 added, x plus 3 divided by y plus 3, it will 5 by 6. Now again cross multiplication. 6x plus 18 equal to 5y plus 15. Now ये इक्वेशन 2 क्या होगा? 6x माइनस हो जाएगा 5y. 6x माइनस 5y LHS को आ गया. LHS आ जाने से माइनस 5y इक्वल टू RHS में 15 था और ये 18 जाके माइनस हो गया. तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अब सब के लिए 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. ये 6x है, ये 5y है, इधर 9y. तो क्या करेंगे? x को एलिमिनेशन प्रोसेस में ये इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 11. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो जाएगा 66x माइनस 54y, 6 4 माइनस 24. इसी तरह 11 इंटू 6 66x माइनस 55y ये हो जाएगा माइनस 18. और सब्ट्रैक्शन करने से ये x कैंसिल हो जाएगा. ये प्लस 54 से 55 पॉजिटिव हो गया है. अब सब्ट्रैक्शन करने से ये बन जाएगा y इक्वल टू, इधर ये भी प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू ये 24 माइनस 24 था. y इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 6. ये नेगेटिव क्यों आ गया? नेगेटिव कैसे आ गया? सॉरी इधर ये गलत हो गया, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है. ये 18 नहीं होगा. 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 11 3 जा ये होगा 33. सॉरी एक्सट्रीमिनेशन 33, ये नेगेटिव 33 माइनस 33. तो अब ये प्लस हो गया और y इक्वल टू 33 माइनस 24 ये आ जाएगा 9. y 9 आ गया. अब x निकालना है. x कहीं पर भी x पुट कीजिए. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 में पुट करने से भी आ जाएगा, इक्वेशन 2 में भी पुट करने से आ जाएगा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहीं पर भी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इक्वेशन 2 में डालने से क्या होगा? 6x माइनस 5 इंटू y 9 इक्वल टू माइनस 3. 6x माइनस 45 इक्वल टू माइनस 3 और 6x इक्वल टू
-3, ये 45 आ गया, RHS प्लस 45 हो गया, ये 6x इंप्लाइज है, 6x इक्वल टू 45 माइनस 3 42, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6 7 आ गया, तो x आ गया 7, y आ गया 9, तो फ्रैक्शन क्या होगा x बाई y 7/9, फ्रैक्शन विल बी 7/9। ये हुआ ना क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह देयर आर 10 क्वेश्चंस, आई विल one after another discuss with you. Next question, question number 2. Here another question for you. 5 years hence, the age of Jacob 3 times that of his son. 5 years hence means after 5 years. Similarly, 5 years ago means before 5 years. 5 years ago, Jacob was 7 times that of his son. Find their present age. Let answer. Let present age. Present age of Jacob is the x and his son is the y. Present age is Jacob x, his son y. 5 years hence means after 5 years. 5 years hence Jacob will be x plus 5. His son will be y plus 5. 5 years hence, that means after 5 years Jacob will be x plus 5. His son will be y plus 5. But according to question, ATQ, according to question, Jacob will be 3 times the age of his son. Jacob will be 3 times. X plus 5 will be 3 times y plus 5. According to question, Jacob will be 3 times that of his son. That means x plus 5 equal to 3 into y plus 5. Now x plus 5 equal to 3y plus 15. The equation क्या बनेगा? x minus 3y, x minus 3y equal to 15 minus 5. x minus 3y equal to 15 minus 5, 10. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. Now second equation. 5 years ago, 5 years ago means before 5 years, Jacob, x minus 5, and his son, y minus 5. But according to question, 5 years ago, Jacob was 7 times that of his son. Jacob was, that means x minus 5 equal to 7 times y minus 5. X minus 5 equal to 7y minus 35. X minus 7y equal to minus x minus 7y equal to minus 35 plus 5. X minus 7y equal to minus 30. It is your equation number 2. तो ये दोनों इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व करना है. प्रेजेंट एज एक्स वाई जैकब का एंड हिज सन का, तो प्रेजेंट एज निकालना है. तो अब एलिमिनेशन में सब सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. तो फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखने से x माइनस 3y इक्वल टू 10 इसे सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या हो जाएगा? x सब्ट्रैक्शन माइनस हो गया, x कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस. अब माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y, ये माइनस 30 माइनस 10, ये माइनस माइनस कैंसिल है. 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40/4 इक्वल टू 10. दैट मीन्स हिज सन इज 10 years old. और जैकब क्या होगा?
एक्स का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। आ गया ना, वाई टेन आ गया, एक्स माइनस 3 इंटू वाई पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, Jacob, x इक्वल टू 40, that means his son present is 10 and the Jacob present is 40. ये हो गया आंसर। Another question for you, another question for you, 3x by 5 minus 5y by 3 equal to minus 2, question equation 1, x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6, equation from equation 1, from equation 1, 2 and 3 LCM will be 6, 2 cancel हो गया, 6 divided 2 3, 3 3 is 9, 9x minus 6 divided 3 it will be 2, 2 minus 5y, 2 into minus 5y minus 10y equal to minus 2. Now it will 9x minus 10y equal to minus 12, it is your equation 3rd. इसी तरह ये x by 3 plus y by 2 इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 6 जाएगा एलसीएम, 6 जाने से 6 डिवाइडेड 3 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 डिवाइडेड 2 3, 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13 बाई 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 6 2 जा 12, 12x प्लस, अब 6 6 कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर बोथ का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 6 कैंसिल है, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर आई। अब y इधर माइनस है इधर प्लस है, एलिमिनेशन में y को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं y, हाँ y को भी कैंसिल कर सकेंगे, 9x माइनस 10y इधर 2x प्लस 3y है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो और इधर 10, इक्वेशन 3 इंटू 3 30 हो जाएगा, 10 3 जा 30, नहीं तो x को भी कैंसिल कर सकेंगे, 9x है 2x है, इधर इक्वेशन 3 को 9 में और i भी को सॉरी इक्वेशन 3 को 9 2 जा 18 हो जाएगा, और इधर 2 है 9 मल्टीप्लाई करने से 9 2 जा 18 भी हो जाएगा। जैसे भी करो x और y एलिमिनेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा तुम्हारा 18x माइनस 20y इक्वल टू माइनस 24, और इधर 9 मल्टीप्लाई करने से ये भी हो जाएगा 18x प्लस 6y इक्वल टू 39 जा 170, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस 18x कैंसिल हो गया, और ये माइनस 20y माइनस 6y माइनस 26y, और ये हो गया माइनस 24, ये भी माइनस 170, 7 4 11 2 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 2 1 माइनस 141, तो y इक्वल टू, इधर भी क्या गलत हो गया था, क्या हुआ है मैं देख रहा हूँ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये इधर ये गलत हो गया है, 9 मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन आई भी क्या बनेगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा इधर 6 मैंने लिख दिया, 9 3 जा 27y और 13 इंटू 9 जा 170, तो ये क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 18x कैंसिल हो गया, ये 20y ये माइनस 27y, ये हो जाएगा 47y माइनस 47y, और इधर ये 21 ये तो ठीक है, और y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47, 47 3 जा 141, 3 7 जा 21, 2 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, y निकल गया, y का वैल्यू हो गया 3, y इक्वल टू 3, सब्स्टिट्यूट वैल्यू को y इन इक्वेशन
3 और 2, यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो y का वैल्यू, तो क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 3 9, 13 माइनस 9, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/2, तो x बन गया 2, x आ गया तुम्हारा x इक्वल टू 2, y आ गया 3, हो गया, सॉल्व हो गया। अब another question for you, another question for you, x by a equal to y by b, equation 1, ax plus by equal to a square plus b square, equation number 2, तो कैसे फाइंड आउट करना है x and y, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये हो जाएगा ay और bx, dx इक्वल टू ay, dx इक्वल टू ay, नाउ इट विल bx माइनस ay इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, dx इक्वल टू ay हो गया और dx माइनस ay इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन इज योर ax प्लस by इक्वल टू है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये ay है, ये by है, तो क्या करना है, इक्वेशन ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को b से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2y को by है ना, ये से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय a, तो b इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय b, तो क्या होगा b स्क्वायर x माइनस a एंड b y इक्वल टू 0 इंटू b 0। अब इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड a स्क्वायर x प्लस a इंटू b y इक्वल टू a इंटू स्क्वायर प्लस हो गया, मल्टीप्लाई खत्म। नाउ सब्ट्रैक्ट, सॉरी सब्ट्रैक्शन करने का जरूरत नहीं, माइनस प्लस कर जाएगा, a by प्लस माइनस कैंसिल, हियर इट विल बी a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x इक्वल टू a इंटू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ x will common inside the bracket a square plus b square equal to a into a square plus a square plus b square कैंसिल हो गया, x इक्वल टू a आ गया, x इक्वल टू a आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, bx b इंटू x का वैल्यू a पुट करने से b है माइनस ay इक्वल टू 0 और ab इक्वल टू ay, a कैंसिल हियर, b इक्वल टू y मीन्स y का वैल्यू आ गया b, x का वैल्यू आ गया 1, a, not so hard for you, that is. Now another question for you, very important question, 8 men and 12 women finish a job in 10 days, finish a work in 10 days together, 8 men and 12 women together finish a job in 10 days. Similarly, 6 men and 8 women can finish this, can do this in 14 days. Find how many days will take one man and one woman separately. 8 men, 12 women together finish a job in 10 days. Similarly, 6 men, 8 women together can do this in 14 days. अब क्या निकालना है, 1 man and 1 woman सेपरेटली कितना दिन में इस जॉब को कंप्लीट करें। तो पहले क्या लेना है आंसर, लेट, तो 1 मैन कितना दिन में कवर करेगा, लेट 1 मैन फिनिश
this in x dash. Similarly, one woman can finish this in y dash. Let one man finish this job in x dash, and one woman can finish this in y dash. So one man finish the job in x dash. So one man can do in 1 day. 1 day में वो कितना करेगा? x डैश में वो फिनिश कर दिया, तो 1 day में वो कितना करेगा? 1 by x part. Similarly, one woman can do in 1 day 1 by y part. एक मैन 1 day में 1 by x part कंप्लीट करेगा. Similarly, one woman can finish 1 by y part of this job. तो अब 8 men and 12 women 1 day में कितना कंप्लीट करेगा? 8 men and 12 women. तो 1 man 1 day 1 by x. 8 men 1 day 8 by x plus 12 women 1 day में कितने? 8 इंटू ये जैसे हुआ 1 by x, इसी तरह ये 12 इंटू 1 by y, 12 by y. 1 day में कंप्लीट करेंगे 1 by 10 पार्ट, क्योंकि 8 men and 12 women कंप्लीट दी जॉब इन 10 days. 10 days में वो कंप्लीट करेंगे, तो 1 day में वो कितना करेंगे? 1 by 10 पार्ट. ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली और क्या होगा? 8 women, सॉरी, सिमिलरली 6 men and 8 women. 6 men 6 by x plus 8 women 8 by y. 1 day में क्या करेंगे? कितना करेंगे? 1 by 14 पार्ट. 14 days में वो कंप्लीट करेंगे, तो 1 day में 1 by 14. ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अब इसको सॉल्व करना है. लेट 1 by x u 1 by y v. तो ये इक्वेशन बन जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? 8 u प्लस 12 v इक्वल टू 1 by 10. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली ये हो जाएगा 6u प्लस 8v इक्वल टू 1 by 14. ये हो जाएगा इक्वेशन 4. अब एक्स वाई निकालने से पहले हमको u एंड v निकालना है, इसका बाद एक्स वाई आएगा. लेट 1 by x इक्वल टू u 1 by y इक्वल टू v हमने लिया है, क्योंकि डेनोमिनेटर में एक्स वाई डेनोमिनेटर में आ गया. ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, उसका बाद सॉल्व करना है और पुट करना है y का वैल्यू, सॉरी u एंड v का वैल्यू निकालने है, उसका बाद x एंड y निकलेगा. तो पहले सॉल्व करना हो. कैसे सॉल्व करें? ये तो एलिमिनेशन में बहुत जल्दी हो जाएगा. इधर 12 है, इधर v है, ये 8 v है और ये 8u ये 6u. तो इक्वेशन 3 को 3 में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 8 3 बन जाएगा तो 24 और इक्वेशन आई भी मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 6 होता है 24. तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 8 24u इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 into 12 36v इक्वल टू 1 by 10 into 3 हो जाएगा 3 by 10. नाउ इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 6 जा, ये हो जाएगा 24u प्लस 4 8 जा 32.
भी ये हो जाएगा 4 इंटू 14, तो 2 से कैंसिल होने से ये 2 ये 7 हो जाएगा 2/7। और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 24 कैंसिल हो जाएगा। 36 भी डिवाइडेड बाय 32 भी, ये हो जाएगा 4 भी इक्वल टू 3/10 माइनस 2/7। क्या इम्प्लाइज 4 भी इक्वल टू, इधर 10 एंड 7 एलसीएम 70, 10 70 डिवाइडेड बाय 10 7 आ गया, 7 3 21 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 7 10 10 2 जा 10 2 जा 40, तो ये क्या आ गया 4 भी इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज 4 भी इक्वल टू 1/7, 4 भी इक्वल टू 1/7। तो भी कितना आएगा, भी आएगा 4 भी 1/70, भी आ जाएगा तुम्हारा भी इक्वल टू 1/70 डिवाइडेड बाय 4, तो 1/70 इंटू 1/4 1/200। तो भी का वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट करने से हुआ जाएगा, तो भी का वैल्यू आ गया। अब u निकालना है, फिर u निकालना है, भी का 1/280, भी का वैल्यू खुद कर दो, ये u आ जाएगा, ये 80u प्लस 12 इंटू भी का 1/280 इक्वल टू 1/10, ये 80u प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 12/280, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, ये 4 7, ये बन जाएगा 7, तो 3/70 8u प्लस 3/70 इक्वल टू 1/10। अब 8u क्या होगा, 8u इक्वल टू 1/10 माइनस 3/70, ये 3/70 आ जाएगा, इसको चला जाएगा, ये आ जाएगा 70 आ जाएगा एलसीएम, 70 डिवाइड 10 7 माइनस 77 1, तो ये 8u आ जाएगा तुम्हारा 7 माइनस 3 4, ये 8u इक्वल टू 4/7। तो u कितना आएगा, ये 8u इक्वल टू 4/70, 7 माइनस 3 4, u आ जाएगा, v का निकल चुका है, हाँ u आ जाएगा 4/70 इंटू 1/8, 4 से 8 कैंसिल होगा 2, 1/70 इंटू 140, तो u भी निकल गया, v भी निकल गया। अब xy निकालना है, 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू u, u का वैल्यू 1/140, तो x इक्वल टू 140, तो 1 man can finish this work in 140 days। सिमिलरली u का वैल्यू पुट कर दिया है। अब v कितना है 1/280, तो v कैसे निकालेंगे, v निकालेंगे 1/y इक्वल टू v आ गया 1/280, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y आ गया 280, तो 1 woman can do this work in 280 days। तो इसी तरह 10 माइंड ब्लोइंग जो क्वेश्चन था, ये 5 तो क्वेश्चन तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, now another important question for you, sum of two numbers is 15, sum of two numbers is 15, let solution, let two numbers are x and y, let two numbers are x and y, their sum x plus y equal to 10, it is the equation 1, so let two numbers are x and y, their sum x plus y equal to 10, अब sum of their reciprocal, sum of their reciprocal,
सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या है 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/x प्लस 1/y इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। तो ये 1/x प्लस 1/y, रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/x है, रेसिप्रोकल ऑफ y इज 1/y इक्वल टू 3/10। अब x एंड y निकालना है, फाइंड आउट करना है x एंड y, फाइंड द नंबर। नाउ इक्वेशन 1 तो हो गया, इक्वेशन 2 कैसे होगा, एलसीएम x y, x डिवाइडेड x कैंसिल हो गया, y प्लस x इक्वल टू 3/10। पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस y इक्वल टू 10 हियर, 10 divided by xy इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 10 10 100, 3xy इक्वल टू 100, xy इक्वल टू 100/3। xy का निकल गया, अब क्या करना है, x एंड y, सॉरी सर सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इधर है क्वेश्चन, हम 10 कर दिया, इधर ये हो जाएगा 15, x प्लस y इक्वल टू 15, फर्स्ट इक्वेशन 10 नहीं 15। अब ये हो जाएगा xy एलसीएम y प्लस x इक्वल टू 3/10, सब्स्टिट्यूट कर दो, y x प्लस y और y प्लस x रिमेंस 15, सब्स्टिट्यूट करने से ये आ जाएगा 3xy इक्वल टू 150, तो xy आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 50, xy 50 आ गया, लेकिन हमको चाहिए x माइनस y, 1/x 1/y तो है इक्वेशन 2 में, इसको u एंड v लेके हम कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट जो इक्वेशन ये xy फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्मेट में है, सेकंड लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, तो सिर्फ सेकंड इक्वेशन में तुम चेंज कर नहीं सको, तो दूसरा एक तरीका में वो सॉल्व होगा। एक्स वाई का निकल गया, अब ये x प्लस वाई मौजूद है इक्वल टू 15, एक्स वाई है x प्लस है, एक्स वाई है x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई निकालना है, हमको ये मालूम है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये 5 कैसे हो जाता है -4xy, है या नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, तो ये प्लस 2xy माइनस 4xy, ये माइनस 2xy हो जाएगा, लेकिन आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं, x माइनस वाई सिर्फ चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स वाई निकल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू पुट कर लो, एक्स वाई का निकल चुका है, यानी एक्स वाई 50, इसका रूट ओवर और 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 इंटू 50 200 रूट ओवर x माइनस वाई इक्वल टू 225 माइनस 200 25 का रूट ओवर इक्वल टू 5, तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, और पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 50, आर कर लो, एलिमिनेशन मेथड में ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 15 20 x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 10, x 10 आ गया, x प्लस वाई 15 दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, सम हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी खत्म। नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, solution, let
2 digits are 2 digits are x and y। तो ये डिजिट क्या है, x का है, ये 10th डिजिट है, और y यूनिट डिजिट। ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। फर्स्ट इक्वेशन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9। तो दैट इज लाइक फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equal to 9। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नाउ ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, द नंबर विल बी द नंबर इज 10th डिजिट x है, 10 into x, यूनिट डिजिट y है, y into 1। तो ये हो जाएगा 10x plus y। रेसिप्रोकल ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग, रेसिप्रोकल, सॉरी गलत कर दी बोल के, रेसिप्रोकल नहीं, बाय ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, twice the number obtained by reversing the digit, reversing the digit, reversing digit, डिजिट्स को रिवर्स कर दो, 10 बन जाएगा 1, और यूनिट प्लेस में जो नंबर ये 10 प्लेस पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा y, और यूनिट प्लेस पर चला जाएगा x। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10y plus x। अब क्वेश्चन क्या है, एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स नंबर क्या है, 10x plus y, 9 टाइम्स द नंबर 10x plus y इक्वल टू 9 टाइम्स द नंबर twice the number, twice means 2 into twice the number obtained by reversing, reversing means 10y plus x। तो 9 into 10x plus y हो जाएगा 2 into 10y plus x। ये आ जाएगा इक्वेशन 2। 90x plus 9y इक्वल टू 20y plus 2x। ये 2x LHS को आ जाएगा 90x minus 2x plus 9 times the number, 9 into 10x plus y, twice the number obtained by reversing, twice, 2 into 10y plus x, 2 10 that 20, 2 into x is 12, 9y minus 2y equal to 0। ये आ जाएगा 90 minus 2, ये 80x minus ये 9 minus 20, ये आ जाएगा 11 equal to 0। इक्वेशन 2 बन जाएगा, डिवाइड 11 बोथ साइड से 11, 8 कर गया, कैंसल होने से 8x माइनस 11 कैंसल किया, 8x माइनस y इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस y इक्वल टू 9 था, तो इधर लिख दो x प्लस y इक्वल टू 9, आर करने से माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, और 8x प्लस x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, 1 आ गया, x 1 आ गया। तो x का वैल्यू पुट करने से x प्लस y मीन्स 1 प्लस y इक्वल टू 9, और y इक्वल टू 9 minus 1 8, y 8 आ गया। तो 2 डिजिट्स x एंड y, 10 था, 10 प्लेस में x था, तो 1 इंटू नंबर विल बी द नंबर क्या होगा, x10 x1 into 10 प्लस y यूनिट प्लस में है 1 into y, 1 into 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 हो जाएगा। नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया 18 हो गया। तो ये 7 नंबर ऑलरेडी खत्म, और जो 10 माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था ऑलरेडी 7 क्वेश्चन फिनिश्ड, 7 क्वेश्चन खत्म हो गया, और 3 क्वेश्चन बाकी रह गया। ये हमारा अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा जरूर, लीनियर इक्वेशन का और कुछ क्वेश्चन लेकर। ये जो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, देयर आर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन था, 7 तो सॉल्व हो गया, और 3 बाकी है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके और एक पार्ट 2 वीडियो जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा पार्ट 2। लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। ये पार्ट 1 को तुम प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट फिर आएगा तो
कमेंट करके बताएगा। ये था लास्ट ऑफ दिस क्लास। जय जगन्नाथ।